Assalamualaikum and welcome to our family. Hope you all are fine and doing well. So in our last video, we discussed about the different types of dominance and we discussed about the co-dominance, which is the equal and separate expression of both alleles. That means कि अगर हमारे पास कोई heterozygous condition present है, so there would be a combined expression of both alleles. अब इसकी मैंने एक example दी थी आपको about the ABO blood group system, जिसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. But before heading towards the topic, there are few important terminologies that you should remember. The first one is multiple allele. So there are few alleles that exist in more than two allelic form. What does this mean? This means that if you remember, मैंने आपको alleles explain किए थे that alleles are the variants of genes that occupy a specific location on chromosome and results in different traits and characteristics. For example, अगर मैं height की example लेती हूँ, height को मैं denote करती हूँ with capital H और इसका recessive allele होगा small h. So there are two different conditions. अब दो possible conditions क्या हैं? That is heterozygous and homozygous. अब इसी तरह से multiple alleles होते हैं. इसकी सबसे best example है the ABO blood group system, जहाँ पे 3 different alleles present होते हैं. इसको आगे चल के explain करेंगे. अगर इसके अलावा मैं आई कलर की एग्जांपल दूं, लेट सपोज आई डिनोट ब्राउन कलर विथ कैपिटल बी, देन ब्लू कलर विथ स्मॉल बी एंड ग्रीन कलर विथ कैपिटल जी. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स. यहाँ पे मल्टीपल अलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट है. दीज आर नॉन एज मल्टीपल अलील्स. सेकेंड इज एंटीबॉडीज. दीज आर द नेचुरल डिफेंस सिस्टम. अब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, लेट सपोज कोई भी जर्म्स, बैक्टीरियाज या वायरसेस वगैरह, सो ये उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं एंटीबॉडीज और एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं. फाइनली वी हैव एंटीजन्स. These are present on the surface of the red blood cells. Now there are 2 different types of antigens. The first is foreign antigens like bacteria, viruses, कोई भी dust particles वगैरह जो होते हैं. Second we have self antigens. ये जो self antigens है ये हमारी अपनी body में present होते हैं. These are found on the surface of the red blood cells. Now if we talk about the components of blood, so we have 4 different components of bloods, that is red blood cells, also known as erythrocytes. They transport oxygen. Then we have white blood cells, also known as leukocytes. They are involved in the immune system. Then we have platelets. They are involved in blood clotting. And finally, we have plasma, that is the liquid part of the blood and contains different kinds of salts, glucose, proteins, etc. So now with that said, let's dive into our topic. Now, if we talk about the ABO blood group system, although there are different types of blood group systems, however, ABO is the most important just because of the blood transfusion. Now, in 1901, Karl Landsteiner discovered the ABO blood group system and said that there are 4 different phenotypes of the ABO blood group systems based on the type of antigens present on the surface of the red blood cells. So that means they are further subdivided into A, B, AB and O. After that, in 1925, Bernstein explained the genetic basis of these ABO systems and said that this blood group system is encoded by a single gene, that is I, present on chromosome number 9. अब ये जो gene I है, इसके further multiple alleles present हैं, that is IA, IB and we have small I. अब ये जो IA है, ये produce करता है antigens A, IB produce antigens B, while small I does not produce any antigen. So let's talk about the genetics of these blood types. अब अगर हम group A की बात करते हैं, so there could be 2 different genotypes. The first would be IA and IA, that is homozygous condition, and heterozygous condition would be IA and small I. अब यहाँ पे जो ये IA allele है, ये कौन से antigens produce करता है? A antigens. So that means कि यहाँ पे जो antigens हैं वो A हैं और इनका जो phenotype है वो क्या होगा? That would be A. अब यहाँ पे जो antibodies हैं वो B present होंगे. जो हमारी body में antigen present होता है उसके opposite antibodies produce होती हैं. Now the question rises, why do we have different antibodies than their corresponding antigens? So the answer is, this is due to the immune tolerance and immune response. That is, during the early development of a fetus, immune system starts learning to recognize self from non-self. अब इसका क्या मतलब है?
कि ये जो सेल्फ एंटीजन्स है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इन्हें रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है और इनके अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। हाउएवर अगर यहाँ पे कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारी बॉडी के अपने एंटीजन्स प्रेजेंट है ये उनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और इस वजह से सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। तो अब अगर ये ग्रुप ए की बात करें सो वी वुड हैव B antibodies. Now if we talk about group B, so again the genotype could be homozygous, that is IB and IB, and heterozygous, that is IB and small I. So antigens इसमें कौन से होंगे? Since IB allele is present, so the antigens produced would be B. अब इसका phenotype क्या होगा? That would also be B. अब इसमें antibodies कौन से present होंगे? इसमें A antibodies present होंगे उसके opposite. Now we have group AB. अब AB का जीनोटाइप क्या होगा? दैट वुड बी बोथ IA एंड IB. अब यहाँ पे दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं सो इसमें कोडोमिनेंस प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स कि इसके फिनोटाइप जो होगा उसमें इक्वल एंड सेपरेट एक्सप्रेशन होगा ऑफ बोथ द अलील्स। अब इसमें एंटीजन्स कौन से प्रेजेंट होंगे? सिंस बोथ द अलील्स आर प्रेजेंट सो दे वुड प्रोड्यूस A एंड B एंटीजन्स। यहाँ पे दोनों एंटीजन्स होंगे। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, दोनों ही सेल्फ एंटीजन्स है सो देयर वुड बी नो एंटीबॉडीज। देन फाइनली वी हैव ग्रुप O. अब अगर हम ग्रुप O के जीनोटाइप देखें दैट वुड बी स्मॉल I एंड स्मॉल I. एंटीजन्स इसमें कौन से प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। इसका फिनोटाइप होगा O और इसके एंटीबॉडीज अब कौन से होंगे? सिंस देयर आर नो एंटीजन्स सो दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको फर्दर ये और क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर हम ग्रुप ए को देखें तो उसकी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ए एंटीजन है तो जो एंटीबॉडीज होंगे वो कौन से होंगे? बी एंटीबॉडीज। ग्रुप बी में जो एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? बी एंटीजन्स। यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होंगे वो ए के होंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्लोजली इसके स्ट्रक्चर को देखें सो जो एंटीजन यहाँ पे जो एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे? वो ए एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैच होता है। दीज एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक। सो ये जो स्पेसिफिक इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये हम एंटीजन्स और एंटीबॉडीज को पढ़ क्यों रहे हैं और ये एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है एक्चुअली? सो अगर एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसी बी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो इसकी वजह से क्या होगा? जो बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास कौन से एंटीबॉडीज हैं? ए एंटीबॉडीज है तो उसकी जो बॉडी है वो उसे आइडेंटिफाई करेगी एज अ फॉरेन एंटीजन। अब फॉरेन एंटीजन की वजह से जो एंटीबॉडीज हैं वो उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो एंटीजन्स हैं ये इन एंटीबॉडीज के साथ स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हो जाएंगे और जैसे ही ये बाइंड होंगे ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो कंप्लीट एंटीजन्स हैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाती है। दैट इज कि जो खून है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में क्लम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज से पास नहीं हो सकता है। प्लस इसकी वजह से हेमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ये आरबीसीज को जो एंटीबॉडीज हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड। अब अगर हम यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप को देखें सो यहाँ पे इसकी आरबीसीज की सरफेस पे दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है। देयरफॉर वी डोंट हैव एनी एंटीबॉडीज। एंड ग्रुप O के अगर रेड ब्लड सेल्स को देखें देयर आर नो एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं लेकिन कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें कि ये जो डिफरेंट ब्लड टाइप्स हैं ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे रिसीव कर सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप A, अब यहाँ पर A ब्लड ग्रुप पे A एंटीजन्स प्रेजेंट हैं और B एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये किस किस को डोनेट कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप वालों को प्लस ए बी ब्लड ग्रुप वालों को क्योंकि ए बी पे कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, ये रिसीव किस किस से कर सकता है? ये रिसीव कर सकता है फ्रॉम ए एंड ओ। ए से इस वजह से कर सकता है क्योंकि ये सेम ही ब्लड ग्रुप है और ओ से क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होता है। ऑल्दो की एंटीबॉडीज हैं लेकिन कोई एंटीजन नहीं है, इस वजह से इजीली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है।
सेकेंड, अगर ग्रुप बी की बात करें हम, तो ये ब्लड ग्रुप बी को और ए बी को अपना ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और ये रिसीव किन किन से कर सकते हैं? ये रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। अगेन सेम रीजन है कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ओ ब्लड ग्रुप पे। अगर ए बी की बात करें हम, सो दीज आर नॉन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। अब अगर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, सो दैट मीन्स कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। अब कोई भी ब्लड ग्रुप अगर इसको दे देता है ए बी को, ये ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी और ओ से भी, क्योंकि कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। अब ये डोनेट किस किस को कर सकते हैं? ये सिर्फ डोनेट कर सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप को। द रीजन इज बिकॉज दे हैव बोथ द एंटीजन्स। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि दे हैव बोथ द एंटीजन्स, तो ये ए और बी को क्यों नहीं दे सकते? अगेन द रीजन इज कि यहाँ पे अगर हम ए को देखें, ए बी अगर ए को ब्लड देगा, सो यहाँ पर ऑल्दो के ए एंटीजन्स तो प्रेजेंट है, लेकिन उस पे बी एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जो इसको रिकॉग्नाइज करके इसको एग्लूटिनेट कर देंगी। तो ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है। देन इफ यू टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप ओ, सो दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अब इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। अब एंटीजन्स प्रेजेंट ना होने की वजह से ये इजीली सबको डोनेट कर सकता है ब्लड। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। लेकिन एक्सेप्ट किस किस से कर सकता है? ये सिर्फ ओ से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सबके जो एंटीबॉडीज हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दैट इज द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much.